Good morning students, welcome back in your maths online class. So we have finished the exercise 7.4. Okay, now we will do addition and subtraction of fractions. तो आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का. तो इफ़ द फ्रैक्शंस आर लाइक दैट मीन्स द डिनोमिनेटर आर द सेम. what you have to do, you have to take the common, that is 1/3 plus 1/3. So here it is common, that is 3, because these are like fraction, and simple addition, that is 1 plus 1 2, you will do in this. Okay, next is, and if the fractions are like 3/4 and plus 2/5, in that case what we will do, we will take the LCM of these numbers and then we will do. So let's have a look on these examples given in your book. Simplify the following. First of all, see, 3/11, 5/11, 9/11, all these are like fraction. So simple like fractions, what you have to do, 11, this is your common, then 3 plus 5 plus 9, that is 3 plus 5 8, 8 plus 9 17. Okay, then whenever this answer comes, first of all what you have to do, you have to do it into improper fraction, convert this fraction into improper convert mixed fraction. This is your, but whenever we will write the answer, first of all we will convert it into mixed fraction, like 7/11. So we will divide 17/11 and then we will get this answer 1 6/11. In this case, see, 3 2/5, all these are mixed fractions. So first of all convert these mixed fraction into improper fractions. So 5 3s are 15, 15 plus 2 17. Okay, then 5 ones are 5 and 3, it is 8/5. Then 5 2s are 10, 10 plus 14, 4 is 14, 14/5. Here 5 5 5. So we have taken 5 as a common because the denominators are the same. Then 17 plus 8 plus 14, then it is 39/5. And then we have to convert it into mixed fraction, that means 39 divided by 5. We will get again the same answer, 5 7 is 35, 35 plus 4 is 7, 4/5. Okay, now simplify the following. Again here see, 9/14 plus 3/14 minus 5/14. So what we have to do, again these are like fractions, so it is your like fraction. So we will write 9 plus 3 minus 5. So 9 plus 3 minus 5, we will get, you can see, 9 plus 3 12, 12 minus 5 is 7, 7/14. And we will, if it be in that is simplest form, that is 1/2. Okay, whether convert the number, if this type of a fraction, that is the, it is your improper fraction, then you have to convert it into mixed fraction. If it is a proper fraction like 7/14, then convert it into the simplest form. Okay, next is simplify the following. Here in the second example you can see all these denominators are same. So first of all convert these into your fraction form. So it is 7. Now these are like fraction, so common is 7. Then 19 minus 24 plus 39. Okay, then it will become 19 minus 24, you can't do, so this is plus and this is plus. So first of all plus this and subtract this and you will get 34/7. Okay, next is simplify the following. In this case you can see 3/4 and 2/5. What are these? Both the denominators are different. So in this case we will do 3/4 plus 2/5. So जब इस तरह के हम लोग, जब इनको इक्विलेंट बनाना है, पहले हमें क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्विलेंट बनाएंगे तो हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल जाएंगे. तो इसके लिए हमें इक्विलेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम. सो 4 और 5 का एलसीएम इज़ 20. सो दो तरीके हैं. देखिए, एक तरीका तो होता है, हमने यहाँ पे 20 लिख लिया. ओके, अब 20 लिख लिया तो अब ये देखिए 4 है, यहाँ 20 है, तो 4 की टेबल में 20 कितनी बार जाता है, यानी 4 5 जा. तो सिंपल आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ क्या था 5 और 3 हमारे पास था, प्लस अब 5 की टेबल में 20 कितनी बार जाता है, 4 बार ना. तो 4 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे ऊपर नंबर है. ओके, ये हमें मिला, तो 3 5 जा हमें मिला 15 प्लस 4 2 जा 8 और ये हमें मिला 20 है ना. तो अब ये देखिए हमें ये मिला
कितना 15/8 दैट मीन्स 23/20। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, अगेन मिक्स फ्रैक्शन में, यानी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 20। तो ये हमें मिला 3 दैट मीन्स हम क्या चलेंगे 1 यहाँ पे हमारा क्या आया, जो सबसे पहले है 1, फिर हमें यहाँ पे मिला 3/20 तो 21 सा, और ये हमें हो गया 23/20। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में है उसमें क्या किया, देखिए यहाँ पे आपको 3/4 था, 2/5 था, तो इसने क्या किया, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आपका एलसीएम हो गया। और फिर जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, यानी 20 बनाना है, यानी 4 5 ज़ा, तो सेम नंबर से, तो ये हो गया 15/20। इसका है 2 4 ज़ा, 5 4 ज़ा, तो ये हो गया आपका 8/20, तो 15/8। तो चाहे तो आप 15/8 इस तरीके से इक्विवेलेंट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया ऐसे कर सकते हो। जैसे फिर से देखिए 3/7 और -5/28, ओके, इट इज़ 3/7 -5/28, ओके। एलसीएम हमने लिया 7 और 28 का, तो हमें किससे मिल रहा है, ये पहले 7 से कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, यानी हमें एलसीएम मिला 28, ठीक है, हमारा एलसीएम आया 28। अब आप देखिए 7 की टेबल में 28 कितनी बार जाता है, तो 7 4 ज़ा 28, यानी 7 4 ज़ा 28, तो 4 लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये लिख दिया आपने 3 माइनस। अब 28 के में कितनी बार 28 जाता है, 1 बार, 28 1 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके, 4 3 ज़ा 12 -5 28, 12 में से 5 गए 7 28, ओके। अब इसको, क्योंकि ये आपका कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन 7/28, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो आंसर विल बी 1/4, ओके। नेक्स्ट, now these are in mixed fraction, so first of all we will convert this into simple fraction form, that is 3 2 is 6 and 6 1 1/7, that is 7/3. next 3 6 are 18 18 5 23, so it is become 23. अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो हमें जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया क्या, 6, क्या आया 6 एलसीएम आया। तो पहले इनको क्या बनाना है हमें, प्रॉपर दैट इज लाइक फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है 6, तो 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ओके। और यहाँ पे जब हमारे पास 37/6 आया, दैट मीन्स इम्प्रॉपर है, तो इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन में क्या है, माइनस भी है आपके प्लस भी है, तो सेम वे में हम लोग पहले इसको इतने को सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट, इसको हम लोग एक ये करके देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन आपके पास है, पहले इसको हम लोग पूरा लिख लेते हैं, 7 कन्वर्ट करने वाला लिख लें 31/4 -23/6 प्लस 7/8, ओके। अब हमारे को इसका एलसीएम मिलता है 24, ओके, सिंपल 4 6 8 का हमारा एलसीएम आया 24। अब एलसीएम आ गया 24, तो अब आप 4 की टेबल बोलिए, तो 4 6 ज़ा, तो यहाँ 6 लिखिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए 31 माइनस, अब 6 4 ज़ा मल्टीप्लाई करिए 23, ओके, प्लस 8 3 ज़ा मल्टीप्लिकेशन करिए 7, ओके। अब आपका 31 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 माइनस 4 3 ज़ा 12 का 2 1 4 2 ज़ा 8 और 1 92 प्लस 3 7 ज़ा 21 और 24। अब ये देखिए 186 माइनस 92 प्लस 21, तो इसमें से पहले हम इसको माइनस कर लीजिए, चाहे इसको प्लस कर लीजिए, या पहले इन दोनों को 186 को या तो 186 प्लस 21 करेंगे, तो आपका 186 प्लस 21 आएगा 207, और 207 में से हम 92 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है 115, तो 115/24। तो ये हमें अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स 150 को हम 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 115 को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 419/24, ओके। अब इसने जो आपको मैं इतनी देर से, ये तो सब लॉन्ग मेथड से,
अब यहाँ पर जैसे मैं आपको शॉर्टकट मेथड ही समझा रही थी इतनी देर से, सेम इसी तरह है। देखिए 13 1/4 23/6, तो हमारे पास एलसीएम आया 24। ओके, तो अब आपको पता है कि 30, या तो इसको लिख लीजिए पहले 31, देखिए यहाँ लिख लिया, फिर 23 लिख लिया, फिर यहाँ पे 7 लिख लिया। अब 4 की टेबल में 4 6 ज़ा, तो यहाँ 6 लिख लिया। 6 की टेबल में 24, 6 4 ज़ा, फिर 8 की टेबल में 8 3 ज़ा 24, और सिंपल जैसे आपको समझ आता है आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 3 5/12 एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ दिस देन द फाइंड द अदर फ्रैक्शन। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस, अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 5/12। ओके, अगर एक इसमें से 1 3/10 है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, 13/10 हो गया, प्लस यहाँ पे खाली छोड़ दिया। ओके, 12 3 ज़ा 36, 37 38 39 40 41, 41/12। ओके, अब ये 41/12 तो यहीं रहेगा, ये नंबर प्लस का तो उधर चला जाएगा, तो -13 क्या हो गया आपका 10। अब इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम होगा 60। ओके, अब ये नंबर है 41, यहाँ पे 41 लिख लिया, ठीक है। और अब क्या है, 12 की टेबल में 60 कितनी बार जाता है, 12 5 ज़ा, तो 5 लिख दिया, माइनस अब यहाँ पर क्या है 13, तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। 12 की टेबल में 60 कितनी बार जाता है, 6 बार, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, तो 41 5 ज़ा 205 माइनस 205 और 78, 13 6 ज़ा 78, यह आपका आया 60। इसको इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 127 डिवाइडेड बाई 60, 7 8 9 और 10। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखिए 127 को 60 से, देन यू विल गेट 27/60। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह हम लोग हमारी ये वाली सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको समझा दिए, और एक्सरसाइज 7.5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।